A very good morning to all. In this video, we are going to study about the monohybrid cross given by Mendel on pea plants. Before moving to the cross, let's recall some terms that are very related to these cross. The first one is phenotype. Phenotype is actually the outward appearance, or you can say the expressed trait or visible characters of an organism, or you can say the physical appearance of the organism. For example, the tallness and the dwarfness of a plant, or some more examples are there, the color of the flower that is visible to you. The second term is genotype. It is actually the genetic makeup of an organism. Means if we are going to say that we are studying the traits that shows the genotype. For example, if we are having a trait small t and a capital T, these are the genotypes. For the small pea plants, or you can say dwarf pea plant, it is small t. For tall, it is capital T, or capital T small t. The next term is dominant. Dominant is an allele that is almost always expressed, even if only one copy is present in the organisms. तो डोमिनेंट वो एलील है जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे की प्रेजेंस में भी. फॉर एग्जाम्पल, the capital T, this is the tall plants. So T is here the dominant trait, or you can say the dominant allele that can express in the presence of small t also. Okay, so we can say कि dominant को हम हमेशा capital letter से ही denote करेंगे. Then recessive. Recessive is actually a, you can say, expression is done only in the homozygous state, or you can say when the dominant trait is absent. जब कोई dominant allele absent होगा, सिर्फ उसी टाइम recessive अपने आप को express कर सकता है, और हमेशा ये small letter से ही शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी. अगर यहाँ पे कोई कैपिटल टी आ जाता है तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. सिर्फ स्मॉल टी जब प्रेजेंट है, मींस दोनों ट्रेड जब प्रेजेंट हैं, तो वहां पे ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. Now some conditions are there, that is homozygous and heterozygous condition. In homozygous condition, if the alleles are given with the homologous state, or you can say the locus is homologous, that is homozygous. For example, if we are writing capital T, it is having two same alleles. If we are writing small t, it is having two same alleles. Then heterozygous, having two different alleles at a given locus on a pair of homologous chromosomes. For example, capital T, small t. तो यहाँ पे तो different type के alleles present है same locus के ऊपर, same position के ऊपर. So such type of you can say chromosomes are heterozygous in nature. In homozygous, same type of allele is present on the locus of homologous chromosome. So now what is monohybrid cross? So monohybrid cross is a cross of two individuals with homozygous genotype which result in the opposite phenotype for a certain genetic trait. मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में किस टाइप का क्रॉस है? ये वो क्रॉस है जो सिर्फ एक ही करेक्टर को लेके आगे बढ़ाया जाता है. Okay, for example, an example is given there in the diagram showing the height of the plant. यहाँ पे दो टाइप के प्लांट है, that is tall plant and the dwarf plant. और यहाँ पे जब इनका क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होने के बाद में हमें जो नया प्लांट मिला वो यहाँ पे F1 जनरेशन है. सो द क्रॉस बिटवीन टू मोनोहाइब्रिड ट्रेट मीन्स होमोजाइगस ट्रेट हमारे पास होगा यहाँ पे, जिसका हम क्रॉस करेंगे, एंड सच टाइप ऑफ क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
So here in the example, the tall plant with TT, dwarf plant with small t forms a new plant, that is F1 generation with the tall plant. So let's study how this monohybrid cross occurs. So in the first step we can take the पेरेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने हाइट को कंसीडर किया है, तो हाइट को कंसीडर करने पर हम क्या देखते हैं, मेरे पास दो पेरेंट है, दैट इज टॉल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट. अगर मैं इनके एलील स्टडी करूं तो कैपिटल टी इज फॉर टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ प्लांट. So during gamete formation, these two allele get separated. दोनों सेपरेट हो गए गैमेट फॉर्मेशन के साथ में, और गैमेट फॉर्मेशन के साथ में जब ये सेपरेट हुए हैं इन दिस पोजीशन, तो यहाँ पे दोनों के पास में एक एलील प्रेजेंट है. सिमिलरली विद द ड्वार्फ वन, गैमेट्स की फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे एक सिंगल एलील दोनों गैमेट्स में प्रेजेंट है. Then these get crossed and form the first filial generation, that is capital T and small t. Its appearance is tall, but the condition is heterozygous. Heterozygous क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, और ये टॉल क्यों है? क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है. So the first generation is always hybrid in such type of crosses. Second generation find out करने के लिए हम इन्हीं first generation का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे. So सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे हमारे पास में जो F1 है वही हम लेके चल रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में पेरेंट्स प्रेजेंट है. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी की फॉर्मेशन हुई विद बोथ हैविंग द सेम टाइप ऑफ गैमेट्स. जब इन दोनों गैमेट्स का क्रॉस कराया एज शोन इन द डायग्राम, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में डायग्राम को शो कर रखा है, तो यहाँ पे जब F2 जनरेशन हमें मिली, हमें यहाँ पे एक तो कंप्लीटली द फर्स्ट वन दिस इज कंप्लीट, एक तो हमें कंप्लीट मिला टॉल दैट इज होमोजाइगस कंडीशन, और एक मिला कंप्लीट ड्वार्फ दैट इज अगेन होमोजाइगस कंडीशन जो रिसेसिव है, और जो टॉल है दैट इज डोमिनेंट. लेकिन दो हमें यहाँ पे हाइब्रिड मिले, लेकिन डोमिनेंस की प्रेजेंस में ये दोनों टॉल है. सो फिनोटाइप रेशियो की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो फिनोटाइप रेशियो मींस अपीयरेंस कैसी होगी, तीन यहाँ पे टॉल होंगे और एक यहाँ पे ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा. लेकिन अगर जेनेटिकली अगर हम पढ़े तो एक तो हमारे पास होमोजाइगस कैपिटल टी है, दो हमारे पास हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक हमारे पास ड्वार्फ है दैट इज होमोजाइगस स्मॉल टी. तो यहाँ पे जो जीनोटाइप रेशियो होगा दैट इज 1:2:1. सो ऑलवेज वी गेट these two phenotype ratio of F2 generation, that is 3:1, and genotype ratio 1:2:1. So let's take an overlook of this monohybrid cross. What the Mendel has done, he has taken pure tall जिसमें कैपिटल टी था जो फर्स्ट पेरेंट हमने लिए, देन ड्वार्फ प्लांट दैट इज स्मॉल टी क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फर्स्ट जनरेशन हमें मिली हाइब्रिड जनरेशन मिक्सचर था कैपिटल टी स्मॉल टी का. अब जो प्लांट F1 जनरेशन में आया उसको हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, सेल्फ पॉलिनेट के बाद में हमें ऑब्टेन हुआ F2 जनरेशन, जिसमें हमारे 75% तो टॉल थे और 25% ड्वार्फ थे. तो वहां पे फिनोटाइप रेशियो हमारा मिला 3:1. So this indicates that the F1 generation, both tall and dwarf traits were inherited, but tallness expressed itself. तो tallness यहाँ पे क्या है, dominant है, and dwarfness is recessive here. तो F2 में जो जीनोटाइप रेशियो हमें मिला that is always 1:2:1. ओके, सो यहां से उसका जो एक्सप्रेशन आया वो यही आया, सेम
कि उसके पास में 4 प्लांट्स में से एक प्लांट कंप्लीट डोमिनेंट है, एक प्लांट कंप्लीट रिसेसिव है स्मॉल टी के साथ में, और 2 प्लांट आपके जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने 2 नए लॉज को जनरेट किया। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? व्हेन you can say parents having pure contrasting characters are crossed, then only one character is express itself in the first generation, first filial generation, या किसी भी जनरेशन के अंदर जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा in the presence of other character, that is dominant character. Okay, so when parents are having pure contrasting characters are crossed, then only one character express itself in generation, and this character is the dominant character, or you can say the dominant factor, and the other one that cannot express itself is known as the recessive character. As shown in the diagram here, 2 type of flowers are there with purple color and white color. सो F1 जनरेशन में आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है? पर्पल कलर नजर आ रहा है। तो मीन्स जो आपका पर्पल कलर फ्लावर है उसमें पर्पल कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेट्स को एलील्स को चेक करो तो पर्पल कलर के हमारे पास जो एलील है दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज फॉर व्हाइट। अब यहाँ पे जो हमें F1 जनरेशन मिली है उसका जो जीन अपीयरेंस है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में किसको एक्सप्रेस किया? कैपिटल आर को, मींस पर्पल को एक्सप्रेस किया। Then with monohybrid cross we can also explain the law of segregation. Now what is the meaning of segregation? To separate. So according to this law every organism has 2 allele per trait, and per trait means per character, and these alleles separate during meiosis, so each gametes gets 1 allele. एक बड़ा सिंपल सा लॉ है बेटा। ये क्या कहता है कि जब भी किसी भी सेल डिवीजन के टाइम पे ड्यूरिंग मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो दैट टेक्स प्लेस इन सेक्सेस। सो जब भी यहाँ पे किसी भी सेल्स के अंदर मियोसिस होगा उस टाइम पर आपके एक करेक्टर के लिए जो 2 एलील है वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस। एज शोन इन द डायग्राम हेयर हमारे पास जो जनरेशन शो कर रखी है दैट इज विद कैपिटल टी दैट्स सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द F1 जनरेशन जो बाद में गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, सेम विद द सेकेंड पेरेंट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो गैमेट्स जो है यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक करेक्टर को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन जो जनरेशंस बन रही हैं, जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, वहां पे आपके दोनों एलील्स प्रेजेंट है। ओके, so 2 trait per allele is present, but during gamete formation these get separated. So in this video we have studied about the monohybrid cross, what is the conclusion of monohybrid cross, and the 2 laws, that is law of dominance and the law of segregation.